देखिए, मैंने पिछले क्लास में बोला था कि अपनी बॉडी है, ये बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है और सिस्टम है, इसके जब स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, जानेंगे, तो वो हो जाएगा एनाटॉमी। जब हम इसकी फंक्शन को जानेंगे, द फिजियोलॉजी। तो हमारे बॉडी में जो सिस्टम्स बना हुआ है, ये सिस्टम्स के एक एक करके जानकारी छोटा छोटा मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। पहले है हीमोपोइटिक सिस्टम। हीम मतलब ब्लड एंड पोइसिस मतलब डेवलपमेंट। बॉडी के अंदर में जो ब्लड का सेल का डेवलपमेंट होता है, ये सिस्टम में उसको कहते हैं हीमोपोइटिक सिस्टम। तो द हीमोपोइटिक सिस्टम composed of cell and plasma. The whole blood, the blood is composed of cell and plasma. Cell is the solid part and plasma is the liquid part. Now, अपने को ये जानना जरूरी है कि प्लाज्मा क्या है और सेल क्या है, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। Can anybody ask me what is the plasma and what are the blood cells? Anybody? What is plasma and what is blood cells? Can anybody tell me? जब आप बात करेंगे, आप आपकी माइक को अनम्यूट करें। हेलो। Plasma, good afternoon, sir. Plasma is blood is composed of two types of cells. First is plasma, and the next one is formed elements. Plasma is a straw-colored liquid component which comprises of 55% of the total blood. It has many other factors like globulins, fibrinogens, albumins. I'm not asking in details. I'm not asking in details. You just tell plasma and cell. Plasma and So may I? Plasma and cell. Okay. Hanija? Yes, sir. Hanija. Yes, sir. Plasma and cell. Plasma and cell. Right. Now, what are the cells? Cell is the basic structure and functional unit of a What are living the body. cells of What the are blood? the cells of the blood? Cells of the blood. Yeah. RBCs, WBCs. Very good. Now I am continuing. Unmute yourself. Now, this blood volume, it is estimated, ये estimate किया गया है कि 8% of the body weight contains the blood volume. And the plasma, I told you we have to know the blood and the plasma. The blood contains the cells and the plasma. Now we have to know what are the functions of the blood and what are the functions of the plasma. Yeah. Now the cells. Plasma main function. The main function of the plasma is the absorption of the foodstuff, then metabolic products and enzymes and the hormones. What is the absorption of the foodstuff? Whatever the foods we are taking, जो खाना हम खाते हैं उसी फॉर्म में बॉडी के सेल्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको एक प्रोसेस होना पड़ता है जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा वो स्प्लिट अप होता है छोटे छोटे टुकड़े में,
and not टुकड़ा but a particular step और stage जो बॉडी के सेल्स उसको एक्सेप्ट कर सकता है और दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म और जो एब्जॉर्ब होके सेल्स के अंदर में जाके से सेल्स का फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो प्लाज्मा का काम है एब्जॉर्ब फूड स्टफ को रखना, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को स्टोर करना, एंजाइम्स एंड द हार्मोन्स। These are the very important function of plasma. Whether in the cell, we know the cells are the three types: RBC, WBC, and platelets. The other name of the RBC is the erythrocytes. The other name of the WBC is the leukocyte. Another name of the platelet is the thrombocytes. Now, these three cells are very important cells of the hemopoietic system, performing different physiological main functions. Now the main function, अगर आपको पूछता है कि ब्लड की मेन फंक्शन क्या है, तो आपका आंसर होगा कि ट्रांसपोर्ट करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? गैसेस करता है, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसके सिवाय भी कई फंक्शन है जो आपकी सिस्टम, हमारे जो सिलेबस है पूरा सिस्टम वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सारी टीचर्स को। तो जो ब्लड पढ़ाएंगे आपको डिटेल्स बताएंगे। मैं तो शॉर्ट फॉर्म में बॉडी के फिजियोलॉजी के फंक्शन को जानने के लिए मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज द हीमोपोइटिक सिस्टम। आपके सिलेबस में जो हीमोपोइटिक सिस्टम नहीं है, इसमें लिखा है कि बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर में आपकी सिलेबस में ब्लड भी है, टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फ है और रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है। लेकिन फिजियोलॉजिकली अगर हम विचार करें, ये सिस्टम सब अलग अलग है। ब्लड की सिस्टम का नाम दिया है हीमोपोइटिक सिस्टम। रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है, ये सेपरेट है, और लिम्फेटिक सिस्टम्स भी अलग है। लिम्फेटिक रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम्स में रेटिकुलो एंडोथेलियल मीन्स रेटिकुलर सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स एंड द वंडरिंग सेल्स। ये पूरा सिस्टम में खाली सेल ही है। वो सेल्स क्या क्या है? रेटिकुलम सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स एंड द वंडरिंग सेल्स। रेटिकुलम सेल्स बॉडी के अंदर में कहाँ कहाँ पे मिलेगी आपको? स्प्लीन के अंदर, बोन मैरो के अंदर और लिम्फ नोड के अंदर। द एंडोथेलियल सेल्स जो होता है ये हमको कहाँ मिलेगी? बोन मैरो में और ब्लड साइनुसेस ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर में जो ब्लड साइनुसेस है, व्हाट आर द साइनुसेस? साइनुसेस आर वेरी माइन्यूट चैनल्स। इन दी कोर्स ऑफ द लेक्चर, ये कोर्स लेक्चर के बीच में मैं एक चीज बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि आप पहली आए हैं कि मेडिकल साइंस को जानने के लिए, पहले से आपका कोई नॉलेज नहीं है। थोड़ी बहुत नॉलेज बायोलॉजी में आपको दिया गया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बायोलॉजी में आपके 12th की स्टैंडर्ड में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें दिया गया है। आप सभी स्टूडेंट पहले एक काम करिए, 2 डिक्शनरी आपको खरीदना है। मेडिकल डिक्शनरी, मेडिकल डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश। सबसे अच्छा किताब है स्टेडमैन्स, STEADMAN, स्टेडमैन्स मेडिकल डिक्शनरी। और दूसरा है, वो भी बहुत अच्छा है दोनों, डॉरलैंड्स, DORLANDFS, डॉरलैंड्स मेडिकल डिक्शनरी। इसमें दोनों डिक्शनरी पॉकेट में मिलता है बाजार में, उसको नहीं लेना है। जो एनलार्ज एडिशन, एनलार्ज बिग बुक है, जो सबसे बड़ा
बुक है उसको आपको लेना है। उसको आपको लेना है। और एक साथ में एक चीज मैं बताऊंगा, आप इंग्लिश टू हिंदी, क्या होता है कि हमें मालूम है कि कई स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले हैं जिसको उतना अच्छा नॉलेज इंग्लिश में नहीं है, आगे चलकर उसको प्रैक्टिस करके वो नॉलेज में लाना है, तो उसके लिए मैं कहूंगा और सबके लिए कि इंग्लिश टू हिंदी बंसल की किताब होती है उसको आपको लेना है, इंग्लिश टू हिंदी वाला। और इंग्लिश टू इंग्लिश में स्टेटमेंट एंड ऑनलाइंस क्या होता है स्टूडेंट, एक्चुअली क्या होता है इसमें, क्या होता है कि आप जब तक पूरा डिटेल्स नॉलेज नहीं रखेंगे हर वर्ड्स में, तो आपको आगे जाके तकलीफ होगी। मेडिकल साइंस में जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। एनाटॉमी में टर्मिनोलॉजी अलग है, फिजियोलॉजी में अलग है, और जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें भी टर्मिनोलॉजी आएगा। तो टर्मिनोलॉजी आपको जानना बहुत जरूरी है, उसके लिए डिक्शनरी की आवश्यकता I have two questions, है। नाउ sir. आई एम कमिंग टू अगेन, यस पूछिए। सर इंग्लिश टू हिंदी बताया आपने, वो बुक है डिक्शनरी। बंसल, BANSAL। थैंक यू। अगर किताब नहीं मिलती है तो आप बात कर लीजिएगा, मैं फिर देख के बता दूंगा, लेकिन ये किताब अभी आप ले ही लीजिए, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम की बात चल रही थी। तो एंडोथेलियल सेल्स आपको बोन मैरो में मिलेगी, और स्प्लीन के जो ब्लड साइनसेस है वहां आपको मिलेगा। कुछ सेल्स होता है कि एक जगह से दूसरी जगह में विचरण करते हैं, दैट मीन्स सेल मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर्स, और उसका नाम दिया है वंडरिंग सेल्स। सेल्स एक जगह से दूसरी जगह में कैसे जाएगा? बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसिस, एवरीबॉडी नोज इट, और अदर्स वे। इसमें ज्यादातर जो सेल्स है वो ब्लड के अंदर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम है, इसके अंदर में जो सेल्स होती है, जैसे लिकोसाइट्स हो गया, डब्ल्यूबीसी। आपको मालूम है कि ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट में से कौन मूव करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। तो these are the three cells जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में है। इसके सिवाय एक सिस्टम्स होता है बॉडी के अंदर में जो लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, और ये लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या रहता है? एक होती है लिम्फेटिक सेल्स और लिम्फॉइड सेल्स। दूसरा होता है लिम्फेटिक चैनल्स और वेसल्स। देखिए साम जगह में कुछ किताब में कुछ चीजें लिखा हुआ है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। एक पर्टिकुलर वर्ड का अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन एक ही, ये आप लोग विचार कर पाएंगे, विचार नहीं कर पाएंगे, इसीलिए टीचर्स की आवश्यकता है। और आपको ये Sir, voice is not audible. अभी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? Yes, नो yes, sir. सर। सर वॉइस क्लियर नहीं है। अभी सुनाई दे रहा है क्या? मैं क्या मास्क पहनना था इसीलिए शायद सुनाई नहीं दे रहा था। अभी सुनाई दे रहा है? नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लर हो रहा है आपका वीडियो। आपके वहां पे होगा, है ना? मेरे यहाँ पे तो मेरे की तो आवाज दूसरे कोई बताए,
आवाज सुनाई दे रहा है क्या? आयुष पटेल, आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ, तो आपके वहां पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप थोड़ा दूसरी जगह बैठ के देखिए, क्योंकि सब जगह में नेटवर्क अलग अलग होता है। Yes, yes, sir. Lymphatic systems, lymphoid cells, the lymphatic channels, and the vessels and lymph nodes. Now, बॉडी के अंदर में जो लिम्फ नोड्स होता है, कहाँ कहाँ पे होता है? लिम्फ नोड्स एक्चुअली जो है स्प्लीन में है, और फेरेंजियल टॉन्सिल्स में है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स पर्टिकुलर ग्लैंड्स होती है, जिसे कहते हैं पियर्स पैच, PEYER एपोस्ट्रोफी। नाउ ये जो पियर्स पैच आया है, अब व्हाट इज द पियर एंड व्हाट इज द पैच, ये आपको डिक्शनरी से देखना पड़ेगा तुरंत। तुरंत आपको उसकी मीनिंग्स, पियर इज डेंटिस्ट एंड पैच इज a group of the cells are called the, so ये जो मीनिंग्स है इसको आपको इसको जानना जरूरी है। इसके लिए मेडिकल डिक्शनरी की बड़ी आवश्यकता है। नाउ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, intestinal glands, pharyngeal tonsil and the spleen, जितनी बॉडी के अंदर में लिम्फ नोड्स है, ये जगह में तो है, इसके सिवाय भी कई जगह में है। ये मेन पार्ट है जो मैं आपको कह रहा हूं। नाउ चैनल्स, लिम्फेटिक चैनल्स और दी वेसल्स, जैसे ब्लड होता है, ब्लड के अंदर में ब्लड वेसल्स होती है, ऐसे लिम्फ के अंदर में लिम्फ नोड्स से, लिम्फ नोड्स में लिम्फ सेल से बनता है। अब लिम्फ नोड से जो लिम्फ का सिक्रेशन है कहाँ जाएगा? चैनल के थ्रू बाहर जाएगा, जिसके लिए वेसल्स की आवश्यकता है। इसलिए इसमें भी लिम्फेटिक चैनल्स आपको मिलेगी, जो जिसका वॉल बड़ा थीन होता है, और इसका सिक्रेशन की फ्लो डायरेक्शन एक तरफ होती है। क्यों? बिकॉज इट इज गाइडेड बाय ए valve, जैसे ब्लड वेसल्स में होता है इसी टाइप से। तो लिम्फ का सिक्रेशन और ब्लड की सिक्रेशन में फर्क है, इतना आप जान के जानिए। अभी ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए क्या है हम बोल रहे हैं, इसके डिटेल्स आपको सिस्टम वाइज जो टीचर पढ़ाएंगे आपको मालूम हो जाएगी। इसके बाद में आता है कि बॉडी के अंदर में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, दैट इज द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल मीन्स बोन, मसल्स मीन्स बोन के ऊपर जो मसल्स अटैच होती है। तो बॉडी के जो बोन्स है, पूरे बॉडी बोन्स पे बना हुआ है, उसके ऊपर में मसल्स है। तो इसमें क्या होता है कि ये सिस्टम के द्वारा बॉडी का एक शेप बनता है। तो ये बॉडी की शेप के लिए जिम्मेदार है स्केलेटल मसल्स। अब बोन्स क्या होता है, बोन्स में बनता कैसी होती है? बोन्स में कैल्शियम एंड फास्फोरस की आवश्यकता है, बोन्स की ग्रोथ की आवश्यकता है। कैल्शियम फास्फोरस की लेवल होना चाहिए, ताकि बोन्स में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन रहे। मैरो, बोन के अंदर में और एक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड द बोन मैरो, और ये बोन मैरो का मेन फंक्शन है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। क्यों? द हीमोपोएटिक ऑर्गन, दैट मीन्स जो बॉडी का जो ब्लड सेल्स बनता है उसका मेन ओरिजिन है बोन मैरो, और दैट बोन मैरो again includes in the bone, and that is also the musculoskeletal system. So इसमें आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में एक सामंजस्य है, को रिलेशन है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका काम एक्चुअली क्या है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की काम क्या है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स हेल्प्स अस टू गिव द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी के शेप के लिए आवश्यकता है। और नंबर 2 क्या है? लोकोमोशन,
person can move from one part to another. If the bones is there, muscles is there, and muscles is working, muscles कैसी work करता है? इधर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स होता है. जहां जहां पे बॉडी के अंदर में जॉइंट्स है, जब हम लोग चलते हैं उसमें कुछ मूवमेंट्स होती है. अगर हमारे बॉडी में मूवमेंट्स नहीं होगा तो वी कैनॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. एंड हियर एक्चुअली एंड रियली बोन एंड मसल्स की कोऑर्डिनेटेड वर्क में ही हम एक जगह से दूसरी जगह में चल पाते हैं, जिसको फिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लोकोमोशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. क्या ये मूवमेंट खाली बॉडी में जो एक्सटर्नली हम देख रहे हैं? नहीं, अंदर में भी कुछ ऑर्गन्स होती है जिसका भी मूवमेंट की आवश्यकता है, जिसमें भी ये मसल्स अंदर में जो रहता है वो भी काम करता है. So this is the skeletal muscles. Now we are coming to the cardiovascular system. Cardiovascular system कैसे बनता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के लिए आवश्यकता है हार्ट और ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स कितनी है? आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी. आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी, 3 ब्लड वेसल्स है. इसका नाम क्यों दिया गया है? इसका नाम इसलिए दिया गया है कि फिजियोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चरली. वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्स. कई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएगा, आप इस क्वेश्चन को रखिए और बाद में आप पूछ सकते हैं. लेकिन आपको जैसे जैसे हम सिस्टम के बारे में डिटेल्स बताएंगे, जो सिस्टम इसके ऊपर में है, तो आपको ये मालूम हो जाएगा. नाउ आपको मालूम है कि बॉडी के अंदर में हार्ट में 4 चेम्बर होता है. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ये जो चेम्बर होता है, one chamber from blood from one chamber goes to other chamber through the valve. Whenever the valve will open, the particular chamber empties the blood to the successive chamber. That means right atrium to right ventricle and left atrium to left ventricle. And there is a flow of the blood unidirectional, not will be the bidirectional, means right atrium to right ventricle, not from right ventricle to right atrium. इसको कौन रोकता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व. तो 2 साइड है, एक राइट साइड है और लेफ्ट साइड है. तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कितनी हो जाएगी? तो एक राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एंड द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व. तो ये पूरी सर्कुलेशन में हार्ट की रोल होता है. क्यों? ये जो चेंबर है, ये चेंबर कनेक्ट रहता है डिफरेंट ब्लड वेसल्स. जैसे राइट एट्रियम में कनेक्ट रहता है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट वेंट्रिकुलर pulmonary trunk, left atrium pulmonary vein and left ventricular aorta. राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है, किसके थ्रू? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा. राइट वेंट्रिकल से अराइज करता है पल्मोनरी ट्रंक. लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन एंड होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज करता है एओर्टा. एओर्टा इज द बिगेस्ट ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बीइंग. ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है, इसी के आधार पर जो सर्कुलेशन में ब्लड की फ्लो कुछ कम डिस्टेंस के लिए जाती है, दैट इज द लेसर सर्कुलेशन. जहां पे बहुत ज्यादा देर तक उसको ब्लड को फॉलो ट्रेवल करना पड़ता है, दैट इज द ग्रेटर सर्कुलेशन. सो द सर्कुलेशन अगेन डिवाइडेड इनटू द greater circulation and the lesser circulation. The lesser circulation is also named as, other name I told you, a particular phenomena in the physiology is being named in the different names.
but all are same. Likewise, the lesser circulation का दूसरा नाम है pulmonary circulation and greater circulation का दूसरा नाम है systemic circulation. सर्कुलेशन की आवश्यकता क्या है? आपको मालूम है कि इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बोक्सीजन एडेड ब्लड. सी, ये तीन वर्ड में यूज कर रहा हूं. तीन वर्ड का मीनिंग एक ही है. अब ये तीन इम्प्योर ब्लड बॉडी के अंदर में जहां पे टिश्यू का काम हो जाता है, उसके बाद में वहां से निकलता है ये इम्प्योर ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स. ब्लड हार्ट में आती है. दैट ब्लड कम्स टू द हार्ट. हार्ट अगेन प्यूरिफाइड दैट ब्लड. हार्ट विल नॉट प्यूरिफाई, बट थ्रू द हार्ट इट गोज टू द लंग्स. लंग्स क्या होता है? एक ऑर्गन है जहां पे ब्लड की प्यूरिफिकेशन होता है. प्यूरिफाई होके जब इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में होता है. अब इसके लिए क्या जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है डिफ्यूजन प्रोसेस. मैंने आपको पहले बोला था कि पूरे ह्यूमन बीइंग के बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल फेनोमेना होता है, कुछ फिजिकल फेनोमेना से डिस्क्राइब किया जाता है. तो ये डिफ्यूजन के द्वारा जो इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एडेड था, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाएगा और ऑक्सीजन ऐड होगा. प्योर ब्लड कैरी होके पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आएगी? पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम्स में, और वहां से वाल्व खोलने के बाद वो इट विल गो टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में ब्लड की फ्लो होगा. तो कितनी लंबा चलना पड़ता है. इसीलिए पल्मोनरी वेन से, दैट मीन्स लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक पूरा पाथवे को कहता है ग्रेटर सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन. और वहां पे जैसे राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ये प्रोसेस को कहते हैं लेसर सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन. दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड पढ़ना है, सर्कुलेशन पढ़ना है, और हार्ट के बारे में जानकारी लेना है. अब हार्ट का क्या क्या फिजियोलॉजी है जो मैंने रिव्यू दिया हूं, आपको मालूम हो जाएगी कि हार्ट के अंदर में जो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है उसमें क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस. सिलेबस में जो दिया गया है उसकी हमने रिव्यू बनाया, जो आपको मैंने शेयर किया हूं, उसी से आपको मालूम हो जाएगी कि हमको क्या पढ़ना है. और क्वेश्चन आपको वहीं से आएगी, उसके बाहर से नहीं आएगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है. अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है आपको मालूम है. रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक से शुरुआत होती है, लंग्स तक जाती है. तो नाक से सब शुरुआत होती है, तो नेजल पैसेज है. नेजल पैसेज पे आएगा फेरिंक्स. फेरिंक्स की एनाटॉमिकली 3 पार्ट है, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स एंड नेलिंगोफेरिंक्स. देन ट्रैकिया, nasal passage to trachea, this is called upper respiratory tract. जब ट्रैकिया से ब्रोंकस बनेगी, और नहीं, ट्रैकिया एंड देन ब्रोंकस. अब ब्रोंकस will enter into the lungs. So the bronchus enters into the lungs, divides into several branches called the bronchioles, and bronchioles again divides and ultimately ends in the alveoli. तो लंग्स के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगी? ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाई एंड द एल्वियोलस. ये है आपकी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अब हमको ये जानना पड़ेगा, ये तो शॉर्ट एनाटॉमी मैंने कहा है, डिटेल्स एनाटॉमी आप एनाटॉमी के में जानेंगे. यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम क्या है.
रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम है कि प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीजन बाहर से लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये मेन काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और इसका दूसरा भी एक काम हो सकता है जैसे एक्सक्रीशन। बॉडी के अंदर में कोई भी किसी हालत में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, सो हेल्प्स रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स। इसके सिवाय भी मेन फंक्शन और है, मैं तो डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में देना चाहता था, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अब उसके बाद में आता है एक्सोक्राइन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की क्या ऑर्गन से एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है? जैसे आपका आ गया है किडनी, किडनी से निकलता है आपको यूरेटर। यूरेटर इज ए पैसेज। ये पैसेज कहां से शुरुआत होती है? किडनी से निकलती है, कहां जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में, वहां जाके खत्म हो गया। ये क्या है? पैसेज। इसका काम क्या है? किडनी में जो यूरिन फॉर्म होता है उसको किडनी से ब्लैडर तक पहुंचाना। देन ब्लैडर, ब्लैडर के बाद में यूरेथ्रा। ब्लैडर क्या करता है? it receives the urine and time to time excrete it. So ब्लैडर के अंदर में लगातार ये भर भी रहा है और खाली भी हो रहा है। So these are the main two function of the bladder: filling of the urine and emptying of the urine. English में बोलते हैं filling of the urine and emptying of the urine. प्रश्न ये उठता है कि क्या तुरंत फिल होता है, तुरंत एम्प्टी होता है? नो, इसके लिए फिजियोलॉजिकल कुछ प्रोसेस होती है, डिटेल्स आपको बात करेंगे जब एसक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। यूरेथ्रा क्या करता है कि पैसेज, ये ब्लडर से यूरिन को बाहर निकाल देता है, बॉडी के बाहर, तो ये पैसेज होता है। ये सिस्टम बोथ मेल एंड फीमेल में है, यही ऑर्गन है। एसक्रीटरी सिस्टम का नाम से ही मालूम होता है कि मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन किसका करेगा? जो बॉडी के लिए हानिकारक सब्सटेंस है, मतलब मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट के बाद में जो सब्सटेंस पॉइजनस टू द बॉडी, दैट विल बी एक्सक्रीटेड कंपल्सरीली, इज डन बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर प्रश्न ये उठता है, क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम में और भी बॉडी में कोई काम करता है? यस, ये डिटेल्स जानकारी आपको जब अलग अलग सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे, जैसे अभी मैंने अभी एक सिस्टम्स के बारे में बताया थे कि ऐसे कई सिस्टम है जो एसक्रीटरी सिस्टम में काम करता है, लेकिन ये नोट करना है कि एसक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट कम्स द एंडोक्राइन सिस्टम। पूरी बॉडी के अंदर में दो टाइप का ग्लैंड्स होती है, एक का सिक्रेशन सेल के बाहर होती है और वो उसी जगह में सिक्रेशन करता है जहां पे उसकी एक्शन है। उदाहरण के तौर पर जैसे सैलिवरी ग्लैंड, ग्लैंड कहाँ रहती है? माउथ के अंदर, वहां से निकलता है सलाइवा। सलाइवा अगर नहीं निकले तो हम बात नहीं कर सकते, हमारे जीभ को लगातार मॉइस्ट होना आवश्यक है। अगर आपकी जीभ ड्राई हो जाता है तो आप बात नहीं कर सकते। और क्या काम करते हैं? ये सैलिवरी ग्लैंड से जूसेस निकलती है, जो खाना हम खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए। कौन सी डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट फूड्स को। तो जो कार्बोहाइड्रेट फूड्स का फर्स्ट डाइजेशन शुरुआत मुंह से होती है, माउथ से होती है, और जो सैलिवरी ग्लैंड काम करते हैं। ऐसे आपको मालूम है कि बॉडी के अंदर में कई ग्लैंड है, जैसे स्किन में आपको स्वेट होता है, स्वेट के लिए स्वेट ग्लैंड्स की आवश्यकता है जो पसीना निकालते हैं।
तो ऐसे इस टाइप के जो ग्लैंड्स है इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी ग्लैंड। माने ये ग्लैंड्स एक्सक्रीट करता है सिक्रेशन को बाहर, सेल के बाहर। मतलब इस सेल के साथ में कोई डक्ट होती है जो डक्ट के थ्रू सेल की सिक्रेशन बाहर निकल आता है। अब बॉडी के अंदर में कई ग्लैंड्स होती है जिसमें डक्ट ही नहीं है, तो इसका नाम दिया है डक्टलेस ग्लैंड। तो इसकी में जो सिक्रेशन होती है, ये सिक्रेशन होके कहाँ जाएगा? सेल के अंदर ही रहेगा। और उस टाइप ऑफ द ग्लैंड्स को बोलता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे बॉडी के अंदर में कई जगह में है, जैसे ब्रेन के अंदर में पिट्यूटरी ग्लैंड, गले के अंदर में थायराइड ग्लैंड, थायराइड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड, फिर एब्डोमेन में जाइए वहां पे पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, फिर किडनी के ऊपर में आइए सुप्रारेनल ग्लैंड है, फिर इन केस ऑफ द फीमेल ओवारी एंड इन केस ऑफ मेल टेस्टिस, और कई ग्लैंड्स है जो तात्कालिक ग्लैंड्स कहते हैं। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसका शुरुआत, उसकी उत्पत्ति होती है और उसके बाद में वो अपने आप खत्म हो जाता है, जैसे प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होता है, जैसे थाइमस ग्लैंड्स है। तो ये सारी ग्लैंड्स जो है, ये इसका काम है, इसमें जो सिक्रेशन होता है बाहर नहीं आ पाती है, उसके लिए कोई वेसल्स की आवश्यकता है। वो वेसल्स दो है, एक ब्लड वेसल्स है और एक लिम्फेटिक वेसल्स है। ये दोनों वेसल्स उस सिक्रेशन को ट्रांसपोर्ट करता है जिस पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर में या ऑर्गन के ऊपर में उसका काम होना है। जैसे थायराइड ग्लैंड, देखिए थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन निकल के एक ग्रुप ऑफ सेल्स के ऊपर में काम करेगा जिसमें थायराइड की फंक्शन होती है और जैसे मेटाबॉलिज्म में काम करता है। सो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन क्या क्या होता है, ये सिक्रेशन कैसे बॉडी के अंदर में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फेनोमेना और फंक्शन को कंट्रोल करता है, और इस ग्लैंड को कंट्रोल करने वाले कौन है, ये आपको जानकारी जानना जरूरी है। और भी जानना जरूरी है कि इस ग्लैंड की सिक्रेशन ज्यादा होने पर क्या होगा और कम होने पर क्या होगा। दीज आर दी अंडर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके बाद में आता है कि हीट रेगुलेशंस, दैट मीन्स इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंटरी सिस्टम और इसका दूसरा नाम है स्किन। स्किन का नाम है इंटेगुमेंटरी सिस्टम। स्किन बॉडी के अंदर में जनरली है, स्किन के दो लेयर होती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। हम डिटेल्स नहीं जाएंगे। इसमें जो मेन फंक्शन होता है इंटेगुमेंटरी सिस्टम और स्किन का की हीट रेगुलेशन। बॉडी के अंदर में टेम्परेचर सदा नियमित में रहता है। दैट मीन्स टेम्परेचर बाहर में बढ़ने के बावजूद भी बॉडी के अंदर की टेम्परेचर कभी भी कम ज्यादा नहीं होती है नॉर्मली। और इसको कंट्रोल करने के लिए स्किन के अंदर में कुछ सेल्स होता है, वो करते हैं, और उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, जो नर्वस सिस्टम की मेन पार्ट होता है। कुछ पार्ट्स में से एक मेन पार्ट हाइपोथैलेमस होता है। एनीवे, द स्किन के फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन, स्वेट फॉर्मेशन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मेन फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा। सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है टीचर्स उसी अनुसार, लेकिन आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने के लिए और रिव्यू को समझने के लिए मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूं। इसके बाद में आता है स्किन के बाद में कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपको मालूम है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या रहता है? ब्रेन एंड स्पाइनल। नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड,
Autonomic nervous system composed of sympathetic and parasympathetic. Central nervous system, brain includes different types. As a whole, nervous system controls all the systems except the cardiovascular system. कोई भी सिस्टम अपना काम नहीं कर सकता है जब तक न नर्वस सिस्टम उसको अपना स्टिमुलस देता है या उसमें काम करने के लिए मदद करता है। एनीथिंग, चाहे आपके एग्जाम के तौर से हार्ट रेट की बात करें, हार्ट साउंड की बात करें, रेस्पिरेटरी रेट की बात करें, पल्स रेट की बात करें, सिक्रेशन ऑफ द स्वेट, excretion of the body, waste product, any physiological phenomena under control of the nervous system. चाहे आपको भूख लगी, भूख मिट गया, प्यास लगी, प्यास मिट गया, पेशाब लगी, पेशाब करने निकले, पेशाब पास किया, ये सारी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना सब कंट्रोल करते हैं आपको ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसके पैरेलल काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्चुअली वर्क्स इन पैरेलल विद द एंडोक्राइन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्ट्स इन पैरेलल विद द nervous system, endocrine glands. Usually some endocrine glands, especially the adrenal secretion. One is the sympathetic, another is the parasympathetic. सिंपैथेटिक काम जैसे है आई की कॉन्स्ट्रिक्शन करना पीपल्स की, और पैरासिम्पैथेटिक काम होगा डायलेट करना। तो कोई भी काम उसकी ऑपोजिट फंक्शन, कुछ जगह में सिंपैथेटिक जो काम करते हैं उसके ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक करता है, और कुछ जगह में पैरासिम्पैथेटिक जो वर्क करता है उसकी ऑपोजिट सिंपैथेटिक करता है। ये ऑटोनोमिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेन काम है इंटेलेक्चुअल फेनोमेना। बॉडी के अंदर में हम जो कभी कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार करने के बाद में हम रिस्पॉन्स देते हैं, ये सारी प्रोसेस ब्रेन के अंदर में होता है। एनालिसिस करते हैं, केमिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जजमेंट देते हैं, ये सब मेंटल फैकल्टी है जिसका अति सूक्ष्म जो काम होती है, वेरी डेलिकेट वर्क, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। स्किल्ड वर्क, जैसे कोई पियानो बजाते हैं, कोई टाइप करते हैं, कोई ड्रॉ करते हैं डायग्राम, ये जो स्किल्ड वर्क है इसको भी काम के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन का कुछ पोर्शन जिम्मेदार है। हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, उनमें से कुछ याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। किसको याद रखना, किसको भूल जाना, और जैसे हमने याद रखा कब इसको याद करना या याद में लाना, ये सारी प्रोसेस जो है वो भी ब्रेन काम करता है। तो ब्रेन का बहुत अहम भूमिका होती है ये सब काम करने का। आप जब ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमको नींद आती है, हमारे शरीर के अंदर में कुछ घटनाएं ऐसी होती है फिजियोलॉजिकली जिसके लिए नर्वस सिस्टम तो जिम्मेदार है, और वो साइक्लिकल काम करता है। कैसे? जैसे नींद, बॉडी में हम जग लेते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा आपको नहीं जाग सकते, आपको नींद आएगी। तो जागना और नींद आना ये एक साइकिल होता है, इसको कहते हैं स्लीप एवेक साइकिल। ये लगातार 24 आवर्स में कितने घंटा बॉडी में जगना चाहिए, कितने घंटा आपको नींद लेना चाहिए, ये फिजियोलॉजी कंट्रोल करता है। और इसके खिलाफ हम जब जाते हैं तब हम बीमार हो जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। सोचना, विचारना, विवेचन करना, बिहेव करना, ये सारी काम और बहुत कुछ है जो पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है।
सारा दिन के अंदर में बाहर से, जैसे परिवेश में हमारे पास में थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आता है, सूचना मिलती है बॉडी को, ह्यूमन बीइंग को। अब अभी ऐसे कोविड-19 चल रहा है, कई सूचना आ रही है, हमारे बॉडी का ब्रेन सोच रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या याद में रखना है, क्या नहीं याद में रखना है। ये सारी प्रोसेस, डेलिकेट प्रोसेस जो हम सोच नहीं सकते कभी, वो पूरा काम ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन का नर्वस सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? नर्वस सिस्टम अगर हम नहीं जानेंगे तो हम पूरी सिस्टम का, बॉडी का जो अदर सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, उसकी काम के कौन सी काम को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। और इसके साथ में ही हम विचार कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको मैं एक चीज बताऊं कि फिजियोलॉजी आप जानेंगे तब आपको मालूम होगी कि हमें हेल्दी रहने के लिए, हमारे शरीर में रोग का प्रवेश ना हो सके, हम रोग ग्रस्त ना हो सके, हम बीमार ना हो सके, ये सारी बाउंड्री वॉल जो है, ये फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद में आपको जानकारी मिलेगी। जो स्टूडेंट पहले से ही लगातार फिजियोलॉजी पढ़ेगा और सुपरफिशियली नहीं डीपली पढ़ेगा, तो इसको पूरी बॉडी इज ए मैजिक बॉक्स। इस बॉडी के अंदर में सिर्फ बॉडी नहीं काम कर रहा है, साथ में मन भी काम कर रहा है। बॉडी अगर है तो मन है, मन और बॉडी एक साथ में काम कर रहा है। लेकिन फिजियोलॉजी के द्वारा हमको ये मालूम हो जाएगा कि हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हो रहा है, मन का क्या संबंध है और साथ में कैसे काम करके हम हेल्दी रह पाए। ये काम आपको फिजियोलॉजी जानने के बाद ही मालूम पड़ेगा। ये हो गया नर्वस सिस्टम। उसके बाद में हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्ट होता है माउथ से एंड इट एंड्स एट द एनस। इसके अंदर में जितनी ऑर्गन्स है माउथ में, जैसे आपका टंग हो गया है, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया है, फिर इसके बाद आप नीचे चलिए, वहाँ पे इसोफेगस मिलेगी, फिर इसोफेगस के नीचे स्टोमक, स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से ये निकल जाएगा, यहाँ तक खत्म होती है। अब ये डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, इसमें आपने ऑर्गन के बारे में जानकारी ले ली। अब उसके बाद में आपको सेल्स की जानकारी लेनी है, फिर उसके बाद में ग्लैंड्स की जानकारी लेनी है। ग्लैंड्स में आपको ये जानकारी लेनी है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है। ये सारी जानकारी लेने के बाद में आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी मिलेगी। और डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ये क्या करता है, नाम से मालूम है कि डाइजेशन। अब डाइजेशन कैसी होती है, किसकी डाइजेशन होती है नहीं होती है, ये सारी जानकारी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के डिफरेंट जूसेस के बारे में जब जानकारी लेंगे तो आपको मालूम होगी। डिटेल्स हम बात नहीं करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की और क्या काम है। डाइजेशन के बाद में होती है कि एब्जॉर्प्शन। जैसे हम राइस खाते हैं, क्या हमारे शरीर के सेल राइस को ले सकते हैं राइस फॉर्म में? नो। जैसे हम ब्रेड लेते हैं, ब्रेड खाते हैं और सब्जियां खाते हैं, ये नहीं ले सकते। इसको ब्रेक डाउन करके ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस में आना पड़ेगा टूट के, ताकि वो केमिकल सब्सटेंस बॉडी में एक्सेप्टेबल हो। और बॉडी में एक्सेप्टेबल होने का प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म मतलब जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुई थी उसको फिर टूटना। कहीं पे एनर्जी डिलीवर्ड होती है, कहीं पे एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो देयर आर टू प्रोसेस, वन इज द कैटाबॉलिज्म एंड इज द एनाबॉलिज्म। इसके बाद में जो रह जाता है, एनर्जी निकल गया, फिर बॉडी का डाइजेशन के बाद में जो इन प्रोडक्ट रह गया, अगर वो इन प्रोडक्ट बॉडी के सेल्स के लिए जरूरी है तो सेल्स उसको एक्सेप्ट करेगा। और सेल्स के अंदर में कई माइन्यूट वर्क फिजियोलॉजिकल होता है
जिसके कारण सेल हेल्दी रहता है। मैं आपको हेल्दी सेल्स की बात करूंगा। आज इसकी नॉलेज का अभाव हो रहा है, फिजियोलॉजी के बारे में नॉलेज ना होने के कारण। सेल का हेल्दीनेस क्या है? सेल का हेल्दीनेस ये है कि सेल के अंदर में जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, जो आयन है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, these are the very important ions, there are so many, इसकी अगर डिस्टरबेंस होगा तो आदमी बीमार पड़ेगा। इसीलिए ये प्रोसेस होता है। तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ये इनमें से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इंक्लूड्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। मेटाबॉलिज्म के लिए मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ सिस्टम्स होती है जो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना को कंट्रोल करता है। ये अभी जो मैंने सिस्टम्स के बारे में बात किया है, इसके सिवाय कुछ घटनाएं होती है जो फिजिक्स के नॉलेज के द्वारा हम जान सकते हैं और केमिस्ट्री नॉलेज के द्वारा जानेंगे। सो दैट इज द बायोफिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। सो होल फिजियोलॉजी इन होम्योपैथी, ह्यूमन फिजियोलॉजी includes actual physiology, number one, number two, biophysics and biochemistry. But in other system of the course, they have the separate, that is the physiology and biochemistry, the separate subject. But here in our homeopathy, it is included. That's why it is called the physiology only. And this physiology, you should know the biophysics and also biochemistry. Biophysics में जैसे सरफेस टेंशन हो गया, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एनीथिंग मोर, तो आपको बायोफिजिक्स के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। और बायोकेमिस्ट्री में एब्सोल्युटली रिलेटेड टू द केमिकल सब्सटेंसेस composed by the human body, the whole body, everywhere there is a biochemistry, either in the blood, either in the digestive system, either in the nervous system, or in the endocrine, or in the exocrine, everywhere you have to know the biochemistry. Protein, carbohydrate and fat. Protein, carbohydrate and fat is the main substances what you take in the food. After absorption, it will undergo the metabolism. In the biochemistry, you know the metabolism of the protein, carbohydrate and fat, and the chemistry portions, the vitamins, the trace elements. The knowledge of all things includes the biochemistry. So this is for today. I have discussed the whole physiology today and what are the things in your syllabus. And next I will tell how to learn and how to learn and assess yourself. This is the very important part. It is very difficult. मेरे को मालूम है कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड से आए हैं, उसका जो लेवल था, यहाँ के जो मेडिकल का लेवल थोड़ा सा हाई है। पहले पहले आपको दिक्कत जाएगी इसके बारे में पूरी नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि किताब के बारे में मैं बताऊंगा कि नॉट ए सिंगल बुक इज कंप्लीट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो इसके लिए आपको मेन किताब मैंने 2 कह चुका था, उसके बारे में आप लोग नॉलेज रखिए और उसको ले लीजिएगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको आप नोट करिए और उसको याद रखिए। दिस फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन?